dignitaries on the dais, the chief guest of today's felicitation function, Additional Collector Mr. Gawane, and the main person behind this program, the President of Minority Front, Dr. Firoz Khan, all my teachers, all the professors, head of the departments, the faculty, the nursing staff, the residents, the interns, all the class 4 and all those who have directly or indirectly been a real force to fight this pandemic of COVID-19. You know, when this first case of COVID was found on 15th March in the city of Aurangabad, and all of us were shaken. We were not knowing anything about this COVID virus. We were not knowing about the presentation, the symptomatology, the investigations, and the management protocols. It was so very difficult, and these protocols used to change almost every week. Every week there was a literature that this is the drug of choice, and next week we used to come across that this drug is no more used in case of COVID-19. So in this dicey situation of the pandemic, our government medical college and hospital, that is known as Ghati, was the only hospital in the city of Aurangabad which already had 210 bedded central oxygen piped building. And so the responsibility of facing this COVID-19 was given to us by the government in the form of a dedicated COVID hospital. And finally, we landed up with not only 210 or 215 beds, but 456 beds, which were added by the working of super speciality building. Now, making this super speciality building functional was really a tough job, but I am thankful to the district administration, may it be the collector, or actually Mr. Gawane was himself involved as an additional collector in making this building functional when the time was of lockdown, when so many things were to be commissioned, and literally these people, we had to send vehicles to different parts of the country. Some of the agencies were from Delhi, maybe from Gujarat, Baroda, or even from Goa, and they came during this lockdown and they made the things possible. So this was a beginning of the journey, and finally we found that it was more than 6,000 cases which were admitted in this hospital as suspect COVID, and out of which 50%, that is more than 3,500, were COVID positive patients. And I am really proud of the Department of Medicine, which is headed by Dr. Meenakshi Bhattacharya. I am proud of the Microbiology Department, which is headed by Dr. Jyoti Iraune. I am proud of Dr. Sudhir Chaudhary, who is OSD for the super speciality building, and so many. If I want to take the names of all of you, I think it would take another 24 hours for me. I am sorry I cannot name all of you, but all of you, everyone, may it be at the Department of Surgery, Orthopedic, ENT, Pediatric, Ophthalm, Biochemistry, Anatomy, Physiology, everybody was ready to work for this COVID-19 patients. During the month of April, everybody was afraid even to go near the COVID patients. The relatives had already banned the patients. No relative was ready to come forward. And during that time, all the junior doctors, the residents, the class 4, the nursing staff, all of them were ready to enter the COVID wards and to enter the ICCU. And it was so very difficult for them. It was not an easy task at all.
when you know that by entering the ward or entering the ICU and touching the patient, you may catch the infection which is life-threatening. दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी किसी मुश्किल में डालना, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सिस्टम कर सकती है। कोई भी दूसरा आदमी, ये डॉक्टर्स हो या हमारे नर्सिंग स्टाफ हो या क्लास 4 हो या रेसिडेंट्स हो, सब एक एथिक्स में जुड़े हुए हैं। जब हम लोग MBBS एग्जाम पास करके बाहर निकलते हैं, तब हमारे से एक हिपोक्रेट्स ओथ लिया जाता है और उस ओथ को लेकर नर्सिंग स्टाफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बंधी हुई है। उन्हीं को याद करते करते इन लोगों ने, सब ने अब हमारा साथ दिया और उसी की वजह से आज हम यहाँ गर्व से कह सकते कि कोविड-19 का पैंडेमिक काफी कुछ अच्छी तरीके से हमने फेस किया। मुझे यहाँ और एक बात की जिक्र करनी है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ कोविड-19। प्लीज रिमेंबर, ये एक इंटरवल है। मराठी में उसको मध्याह्न बोलते हैं। ये इंटरवल है, बाकी पिक्चर और बाकी है। इसका मतलब यही है कि वी शुड नॉट बी नेग्लिजेंट। आधे लोगों को मुझे मास्क नहीं दिख रहा है इधर। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई है आज, लेकिन जरूरी था कि सबने यहाँ आना, क्योंकि जब फिरोज भाई ने मुझे पूछा कि आपके कितने लोग हैं फेलिसिटेशन, गिनती बढ़ते गई। पहले 50 लोग बोले, फिर 150 हो गए मेरे से। मैं तो बोली सब 2000 को हमें फेलिसिटेट करना है। तो वो बोले मैडम 2000 को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरीवन, आप ऐसा मत सोचो जो यहाँ आज आ नहीं सके। सम ऑफ देम आर ऑन ड्यूटी, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उन्होंने किया है, लेकिन हम सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। लेकिन मैं अपने दिल से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर हमसे ही बोल रहे हैं कि हम आपके लोगों को फेलिसिटेट करना चाहते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां ये माइनॉरिटी फ्रंट के लिए। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि पहला फेलिसिटेशन मैं तो हर महीने करना चाहती थी आप लोगों का फेलिसिटेशन, लेकिन मन में एक डर था। आज फेलिसिटेट किया और कल केसेस बढ़ गए तो क्या करेंगे, तो हम लोग खामोश बैठे थे। डॉक्टर फिरोज खान तो 3 महीने से पीछे पड़े हैं कि मैडम हमें एक प्रोग्राम लेना है। मैं बोली नहीं, रुको थोड़ा, कोई भी चीज सही वक्त पे किए तो उसका मतलब अच्छा होता है। इसलिए हमने सोचा कि ये शायद सही वक्त है कि कम से कम इट इज अ वेरी पार्शियल थैंक्स गिविंग टू ऑल ऑफ यू। ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, आपने जिस तरीके से काम किया है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा फंक्शन है। यू डिजर्व मच मोर देन व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के काम को सलाम करने के लिए। एक वक्त ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कोई बोला मुझे कि मैडम आप सुबह बहुत जल्दी उठते, शायद आपका व्हाट्सएप मैसेज दिखता है 5 बजे। हम भी बहुत जल्दी उठते बोले। तो मैंने बोला आप जल्दी उठते तो है क्योंकि आप सो पाते, मैं तो सो ही नहीं रही। वी वर नॉट स्लीपिंग थ्रू आउट द नाइट्स फॉर सो मेनी मंथ्स। वी हैव नॉट टेकन अ सिंगल संडे एज अ हॉलीडे। कैन यू इमेजिन? 7, 8, 9 महीने से हमारे सब लोग ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। खुशी की इतनी बात है कि 15 दिन से थोड़ा कोविड कम हो गया है और शायद हम थोड़े खुल के सांस अभी ले पा रहे हैं कि चलो भैया, कोविड का पैंडेमिक इज एटलीस्ट शोइंग अ ड्रॉप, द डेथ रेट इज शोइंग अ स्लाइट ड्रॉप,
लेट अस होप, भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, उससे हम वी वांट टू प्रे कि भाई ये कैसा भी करो और ये पैंडेमिक है, ये कोविड है, इसको आप अपने साथ ले जाओ। हमें फिर से पुरानी जिंदगी जीनी है, हमें फिर से हर फैमिली में खुशियां लौटानी है। बाल बच्चे हैं घर में 6 महीने से बैठे, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सारा मार्केट बंद है, रास्ते बंद है। ये तो अपनी शिकायत है। गरीबों की सोचो, उनके पास तो काम नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे वो लोग। इतनी बुरी हाल हो गई ये कोविड की वजह से। और एक कोविड जो वायरस होता है वो जो आंखों से दिखता भी नहीं है, वो अपने जैसे 5 और 6 फीट वाले आदमी को ऐसा सता सकता है, ये सोच सोच के बहुत बुरा लगता है। ये पैंडेमिक 100 साल के बाद अपने पास आया है। Exactly 100 years back we had that plague pandemic, लेकिन तब की हालत बहुत बुरी थी, मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था। लेकिन आज और जिस तरह से अपने देश में, अपने महाराष्ट्र स्टेट ने और औरंगाबाद ने जिस तरह से कोविड की फाइट दी, मुझे लगता कि ये सबसे अच्छी फाइट है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस है, मेडिसिन है, सर्जिकल्स है, जो भी अमाउंट में आ रहे थे, प्रोपोर्शन में आ रहे थे, उसके हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रही और मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद का नाम रोशन हो गया है। मुझे बाहर के जिले से फोन आते हैं, मराठवाड़े से तो आते ही हैं, जलगांव है, धुलिया है, लेकिन पूना, बॉम्बे से भी फोन आए कि हम पेशेंट भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना था कि यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, देखभाल अच्छी है। तो सच में उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि अपने डॉक्टर्स, दे रियली डिजर्व मच मोर देन व्हाट दे आर डूइंग। जब ये कोविड का मुश्किल रास्ता हम सब लोग काट रहे थे, उस दरमियान हमें बहुत मदद मिली। अभी तो आपने बताया इसलिए मुझे एक एक याद आ रहा, याद भी नहीं है कौन आता था। कोई पीपी किट देके जा रहा था, कोई मास्क डोनेट कर रहा था, कोई अनाज दे रहा था, कोई फ्रूट्स दे रहा था, कोई लोगों ने तो हमारे डॉक्टर्स के खाने का भी इंतजाम किया। 3-3 महीने उन्होंने पार्सल भेजा हमारे पास। तो तब ऐसा लगा कि अपने देश में अभी भी एक धर्म है, उसका नाम है इंसानियत। और इंसानियत वो होती है, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो और बीमार को उसकी सेवा करो। और ये सब उस टाइम हमने महसूस किया। ना किसी का धर्म मुसलमान था, ना किसी का धर्म हिंदू था, सिख था, ना ईसाई था। हमें सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि ये पेशेंट है और इसको डॉक्टर की जरूरत है, इसको नर्सिंग स्टाफ की सेवा की जरूरत है। बस हम सिर्फ वो करते गए और हमने दूसरा कुछ भी सोचा नहीं। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कहने के लिए बहुत है मेरे पास। ऐसे लगता कि बैठ के कुछ किताब लिखूं ये कोविड पे, लेकिन अभी भी वो थॉट प्रोसेस ठिकाने पे नहीं है। अभी भी हमारा जो ब्रेन काम कर रहा वो ठिकाने में नहीं है, क्योंकि एक डर सा है अंदर कि कब ये कोविड ऊपर आएगा, कब ये अपना सिर ऊपर निकालेगा। तो वी विल वेट फॉर द WHO एंड द वर्ल्ड टू से कि कोविड पैंडेमिक अभी खत्म हुआ। वी आर वेटिंग फॉर दैट सेंटेंस। और रोज मैं मेरे डॉक्टर्स को पूछती हूँ, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मतलब आपका भविष्य क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, आगे बढ़ने वाला है, स्टैटिक रहने वाला है या कम होने वाला है। सो एवरीबडी ऑफ अस इज वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। और ऐसा कहा जाता है कि इरादे जब कच्चे होते हैं तो मुश्किलें सामने आते हैं। इरादे जब कच्चे होते हैं तो मुश्किलें सामने आती है, लेकिन इरादे अगर पक्के हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।